It's being described as an eerie rerun of Delhi's Nirbhaya case in Moga in Punjab. The government today offered a compensation to the next of kin of the victim, offered a mother a government job and 20 lakh rupees. The victim's family has alleged that they are being intimidated. The mother was forced to sign blank papers. It's a major allegation against goons. The Punjab government, however, has promised a free, fair and impartial probe. Atir Khan is on ground zero and brings us this report. This is the Orbit bus in which the Moga molestation and murder took place. This was the bus in which the victim was riding and her daughter was also along with her. On the 29th of April, a teenager forcibly jumped to her death after a nightmarish ride on this bus. मम्मी ने छेड़छाड़ कर लग गई जब मैं उठ के मैं यो मन धक्के ना बहा देंदे सीगे जब मैं मम्मी ने छेड़छाड़ कीती ते पहले मम्मी ने जो धक्का मारया 48 hours later, those who own the bus, Punjab's ruling family, chose to provide extra security to their company's buses instead of addressing the concerns of women passengers in the state. What the family now says is that until the license of Orbit Travels, which is reportedly run by the Badal family, which is the ruling party here in Punjab, be cancelled, they are not going to cremate the body of the 13-year-old teenager. The political apathy doesn't end there. The family of the victim have said that they've been harassed into silence, threatened even as they were mourning the loss of their daughter. जहाँ हम लोग डेड बॉडी लगाते हैं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है अभी हमको 3-4 बार फोन आ चुका वहां से कि यहाँ से डेड बॉडी उठाकर ले जाओ. But the opposition used the charges as ammunition to target the Badals, with protests raging from Moga Civil Hospital to Harsimrat Kaur's doorstep in the capital. Those behind the murder and molestation have been remanded to police custody, but the bereaved family faces threats and apathy of the administration. A delayed announcement for compensation will do little to relieve their pain. Will this family ever get justice? With camera person Sudhir Kumar, Atir Khan in Moga for Headlines Today. Both the Congress and the Aam Aadmi Party have launched a frontal attack on the Badal family in Punjab. There are allegations that the family will not get justice, especially amidst these allegations that they were made to sign certain blank papers and the mother was asked to leave the hospital when she was still unwell. And spearheading this movement is Bhagwant Mann, Member of Parliament of the Aam Aadmi Party. भगवंत मान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा. सुखबीर बादल का कहना है कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलेगी. आपको क्यों लग रहा है कि न्याय नहीं मिलेगा? देखिए, ये जो बसें हैं ऑर्बिट कंपनी की, ये बादल परिवार से संबंधित है. इनके मालिक ये हैं, तो खुद ही जज, खुद ही मुजरिम कैसे जांच हो पाएगी निष्पक्ष? तो इसलिए हम इसकी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और इस परिवार पर दबाव डाला जा रहा है कंप्रोमाइज करने का. मैंने आज इनके पिताजी से बात की थी. उसने कहा जी मेरे से ब्लैंक पेपर पर अंगूठे का निशान ले लिया गया है, मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे थे. और पुलिस कह रही है वो तो पोस्टमार्टम के कागज थे. क्या पोस्टमार्टम के कागज पर ऐसे ब्लैंक पेपर पर साइन या अंगूठे के निशान लिए जाते हैं? तो उनको लालच दिया जा रहा है. लेकिन मैं आज उनकी फैमिली को मिलके आया हूं. उस बच्ची की जिसकी मौत होगी उसकी मां को मिलके आया हूं जो जख्मी है. हाँ. उसने भी आज ये कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए. और इसीलिए हमने आज बागा पुराना थाना जहां पे वो केस दर्ज है वहां पे धरना दिया. बहुत हजारों की गिनती में लोग आए और लोग सड़कों पर आए. लोगों का गुस्सा जो है, ये ऑर्बिट जो है ये हमारे पंजाब में खूनी बसों के नाम से जानी जाती है. लेकिन आरोप जो बादल परिवार लगा रहा है, हालांकि हम बादल परिवार से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं. स्थिति इस समय यह है, एंड आई वांट टू टेल आवर व्यूअर्स, वी आर ट्राइंग टू स्पीक नॉट जस्ट टू द बादल्स बट टू द अकाली दल पार्टी, द एसएडी. Nobody is coming forward to speak on camera because the allegations are really harsh. The allegations are that pressure is being mounted on the family to withdraw the case or at least have a compromise, a charge that Sukhbir Badal has at least officially denied. भगवान मान जी, आरोप यह लग रहा है आम आदमी पार्टी पर और कांग्रेस पर कि आप लोग एक क्रिमिनल केस पर राजनीति कर रहे हैं. देखिए, एक गरीब परिवार के साथ खड़े होना, एक वो परिवार जिनको ये अपनी मर्जी से
केस को कमजोर करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उनके पक्ष में खड़े होना क्या राजनीति है? मुझे ये समझ नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वहां से प्रोफेसर साधु सिंह, लोगों ने हमें वोट देकर हम पर विश्वास किया है। अब किसी संकट के मौके पर हम उनके साथ खड़े हों तो ये राजनीति नहीं है। मैंने आज बार बार कहा, अपनी स्पीच में भी कहा कि हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं। हम मानवता के नाम पर, हम ह्यूमन ग्राउंड्स पर इस परिवार के साथ खड़े हैं। और ऑर्बिट बसों का ये एक केस नहीं है, हर रोज ये किसी न किसी मोटरसाइकिल वाले को, किसी छोटी गाड़ी वाले को कुचल कर चले जाते हैं और पुलिस की हिम्मत नहीं है कि इनकी बसों को रोक पाए, क्योंकि पुलिस की नौकरी चली जाती है जो ऑर्बिट बस को रोकता है। आज ही आपने देखा होगा, आपने हेडलाइन में भी बताया कि पंजाब सरकार को पंजाब की महिलाओं की, बच्चे बेटे बेटियों की कोई चिंता नहीं है, बसों की चिंता है। इन्होंने बसों को सिक्योरिटी दे दी है, पंजाबियों को के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक आरोप अगर इससे हटकर बात की जाए तो अब यह कहा जा रहा है कि जो राज्य के मुख्य सचिव हैं, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ सेक्रेटरी देयर विल बी अ कमिटी दैट जॉब। क्या इससे आप सहमत हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी और कैसे सिर्फ ऑर्बिट बस नहीं, सरकारी बसों पर यात्री कैसे सुरक्षित हो, इस पर एक फैसला होगा? क्या यह सही कदम है? गौरव जी, मुझे ये बताइए, चीफ सेक्रेटरी साहब किसके आदेश पर काम करते हैं? मुख्यमंत्री के आदेश पर। तो मुख्यमंत्री जब खुद बसों के मालिक हैं, वो किसी ने कहा है ना कि जिस देश में हाकिम व्यापारी होते हैं उस देश के लोग भिखारी होते हैं। तो हर बात में बादल साहब को अपनी बसों की चिंता है। दो सिक्योरिटी की जिप्सियां लगा दी उनकी बसों के, एक आगे एक पीछे, लेकिन उनको लोगों की कोई चिंता नहीं है। जैसे उबेर कंपनी को बैन किया गया था दिल्ली में, टैक्सी कंपनी को, रेप का केस जिसमें घटना हुई थी और उनके डायरेक्टर्स पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे, ऐसे ही ऑर्बिट बसों को पंजाब की रोड से हटाया जाए, इनको ऑफ रोड किया जाए और ऑर्बिट बसों की जांच हो कि कितने परमिट इनके पास नकली हैं, कितने इनके पास असली हैं। भगवंत मान जी, आगे आपकी रणनीति, गुंडागर्दी है। आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? क्या आप संसद में इस मसले को उठाएंगे या फिर वहीं पर सड़कों पर राजनीति होगी, मोगा की सड़कों पर? देखिए, संसद से लेकर सड़क तक हम पूरे पंजाब में लोगों को यह आग्रह करेंगे कि इनकी सरकारी गुंडागर्दी की इंतहा हो गई है। पंजाब में जंगल राज हो गया है। मैं संसद में भी मंगलवार को, क्योंकि सोमवार की छुट्टी है, तो मैं संसद में भी ये मामला उठाऊंगा, जोर शोर से उठाऊंगा। जितनी देर ऑर्बिट कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता और ऑर्बिट बस ऑफ रोड नहीं होती, हम सड़कों पर भी रहेंगे और संसद में भी जाएंगे। और सबसे दुखदायक बात यह है कि हरसिमरत कौर बादल पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं कि मैं जांच करवाऊंगी ऑर्बिट बसों का मालिक कौन है, जबकि उन्होंने बठिंडा से इलेक्शन लड़ते समय इलेक्शन कमीशन को यह एफिडेविट दिया था कि मेरे पति सुखबीर सिंह बादल का इतना शेयर है ऑर्बिट रिजॉर्ट में, ऑर्बिट एविएशन में। एक बड़ा सवाल, खुद वो अपनी एक डायरेक्टर थी। एक बड़ा सवाल। भगवंत मान, they're raising a valid question and insisting that the Aam Aadmi Party will raise this question, will raise this issue, not just on the streets of Moga, but even in Parliament. Bhagwant Maan, for the moment, many thanks for joining me here on the newsroom. We will continue to track the story of Moga's Nirbhaya very closely.